Guys, how you all are? Hey guys, how you all are? I hope you all are doing good. Hopefully life on going on a good track. Now here this is Ananamsha with a chapter 8, the Neolithic Age, first food producer and animal keepers. Now today we are gonna cover this chapter. Sorry for the late upload of the videos, but stay tuned for more update because the video is coming soon and I will clear all the backloads I have on the YouTube very soon. So this is chapter number 8, the Neolithic Age, and for that said, let's go and start the video. Okay, let me be ready with my toolbox. Do like, share and subscribe if you find it good to have. Okay. Earliest rural settlement in Balochistan. Okay, Balochistan and Mehrgarh is also known as the Mehrgarh is on a river of Bolan River in Kochi River, which is called as breadbasket of Balochistan, Mehrgarh. This settlement lay on edge of Indus Valley. It is called an earliest Neolithic settlement, largest Neolithic settlement between Indus and Mediterranean. Though the settler raised domestic animals and produced cereal, they were disturbed around. Okay, ये किस चीज़ से डिस्टर्ब हुआ? ये डिस्टर्ब हुआ बाई अराउंड फ्लड. ओके, फ्लड की वजह से एग्रीकल्चर एंड अदर एक्टिविटीज वर रिज्यूम्ड. With the help of both stone and bone tool, the Neolithic people of this area produced wheat and barley from the outset. They domesticated cattle, sheep, and goat in initial state. Initially, goat predominated, but eventually, cattle outnumbered the two other animals. Cattle really rearing maybe helped agriculture. ठीक है, कैटल की हेल्प से ही एग्रीकल्चर किया जाता था. Cereal were also produced in substantial quantity and stored in granaries, which has been discovered in different phases. Generally, granaries were made up of mud bricks, were used for constructing dwelling. Okay, many mud brick structure which are compartmented appear to be granaries. This period saw a considerable agricultural expansion from Kochi plain area into Indus plain area, and also saw progress in pottery. Up to 5000 BC, the people did not make pot, but after 4500 BC, the potteries were known. Okay, post pot rapidly multiplied and they began to be painted. ठीक है, पॉट्स जो थे वो उसको मल्टीप्लाइड करने लगे और वो क्या करने, पेंटिंग उस पर स्टार्ट हो गई थी. ड्राई बेसिन ऑफ हकरा इन द इंडस ट्रिब्यूटरी विच इज इन गंगर हाकड़ा सुना ही होगा. अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस 47 later Neolithic settlement have been found. Evidently they paved the way of rise of Harappan culture. ये न्यूलिथिक पीपल से ही अब धीरे धीरे करके हड़प्पन कल्चर का डेवलपमेंट होने लगा. ये है कुछ साइट्स ऑफ न्यूलिथिक कल्चर. पता करते हैं कौन से कहाँ हैं. ठीक है, यहाँ पे है बुर्ज़ाहोम श्रीनगर जो कि एक प्रेजेंट साइट है. यहाँ पे देखो गंगर हाकड़ा, ये देखो ये रहा इंडस रिवर सिस्टम, ये रहा गंगा रिवर सिस्टम जिसके अंदर चिरंद है जिसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग. मेहगर है, चार है, हियर इट्स मेहगर. ओके, वो सॉरी ये महागढ़ा है और ये मेहगर है. क्वेटा है. ठीक है, फिर यहाँ पे भी बहुत सारी साइट्स है. पल्लव, कुल्लव, तेरहदार, टाराकोट, पाइकल बहुत इम्पोर्टेंट है. उतनूर बहुत इम्पोर्टेंट है. मास्की देयर. ओके, पनीपली, ये सारे कुछ साइट्स हैं. ओके, यहाँ पे द न्यूलिथिक एज फर्स्ट फूड प्रोड्यूसर एंड, अच्छा ये तो चैप्टर का नेम है. सम न्यूलिथिक साइट फाउंड इन नॉर्थन स्पर्स ऑफ विंध्या आर कंसिडरेबली आर ओल्ड. जो विंध्यास और रीजन पे फाइंड आउट हुए हैं वो बहुत पुराना है. बट जनरली न्यूलिथिक सेटलमेंट जो है साउथ इंडिया में आर नॉट ओल्डर देन इतना, मतलब इतना से ओल्डर नहीं पाया गया. इन सम पार्ट ऑफ साउदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया दे आर लेट एज इतना, मतलब
यहाँ पे दोनों कल्चर था। यहाँ पे हो सकता है कि मेसोलिथिक पीरियड भी चल रहा हो और यहाँ पे न्यूलिथिक भी चल रहा हो सकता था। ठीक है। द पीपल ऑफ न्यूलिथिक एज यूज टूल एंड इम्प्लीमेंट ऑफ पॉलिश स्टोन। दे पर्टिकुलर यूज स्टोन एक्सेस विच हैव बीन फाउंड इन लार्ज नंबर। और ये एक डिपिक्ट भी करता है ना हमारे एक हीरोइक कल्चर को, परशुराम एज एन इम्पॉर्टेंट एक्स विल्डिंग हीरो। परशुराम गॉड लेजेंड। Based on the type of axe used in Neolithic settle, we notice three important areas: Neolithic settlement, northwestern, northeastern and southern. On the basis of axe use, मतलब जिस टाइप से कुल्हाड़ी यूज होता था, इस पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप जो न्यूलिथिक टूल है, एक रेक्टेंगुलर एक्स पाया जाता था कर्व्ड कटिंग एज के साथ। द नॉर्थ ईस्टर्न वाले ग्रुप पे पॉलिश स्टोन एक्स विथ अ रेक्टेंगुलर बेल्ट, थोड़ा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस का मेनली यूज था। ये जो ईस्टर्न वाले पार्ट से यहाँ पे दोआब से, दैट्स मीन एक थिक फॉरेस्ट वेजिटेशन था, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता था, तो उसको कट ऑफ करने के लिए कुल्हाड़ी तो अच्छा चाहिए ही ना। कुल्हाड़ी अगर अच्छा नहीं होगा, दैट्स मीन यहाँ पे कुछ काम अच्छे से हो नहीं सकता है, सेटलमेंट हो नहीं सकता है। ओके, साउदर्न पार्ट में एक्सेस ओवल साइड एंड पॉइंटेड बर्ड्स। ओके, यूज ऑफ बोन टूल इन द साइट ऑफ बुर्जाहोम एंड चिरन। बुर्जाहोम एंड चिरन कहाँ है? इसमें बहुत, इस टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक्स का, मतलब बहुत सारे साइट्स का तो ये है डिस्कशन है, जिसके बारे में हम लोग मैप में पता कर ही लिया है, राइट। कश्मीरी न्यूलिथिक कल्चर वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय अ ड्वेलिंग पिट। मतलब ये देखो, ये वाला पूरा लैंड है, इसके अंदर यहाँ पे, और इस यहाँ पे घर है, यहाँ पे इंसान रह रहा है, इसको बोलते हैं पिट ड्वेलिंग। ठीक है। एंड वैरायटी ऑफ स्टोन एंड बोन टूल जो है फाइंड हुआ है। एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथिक। ठीक है। माइक्रोलिथिक जो छोटा मोटा टूल था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था मेसोलिथिक एज में, उसका पूरा डिसअपरेंस होने लगा, उसका यूज नहीं होता था। इट मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट इन बुर्जाम विच मीन द प्लेस ऑफ ब्रिज सिचुएटेड 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम श्रीनगर। श्रीनगर जो कि है हमारे अभी जम्मू एंड कश्मीर में, इसके थोड़ा दूर 16 किलोमीटर दूर पे ही एक बुर्जा होम है, जिसके अंदर हमको पता चलता है हंटिंग एंड फिशिंग जो था उसका इकोनॉमी था। ठीक है। एग्रीकल्चर भी होता ही होगा। द पीपल ऑफ गुरफुकल रिट्रीव द केव ऑफ द पॉटर। न्यूलिथिक साइट है गुफरल, जिसके बारे में हम लोग देख ही लिया। साउथ वेस्ट ऑफ श्रीनगर प्रैक्टिस बोथ एग्रीकल्चर भी और एनिमल हस्बेंड्री भी। और बुर्जा होम में बेसिकली फिशिंग ही था और एनिमल हस्बेंड्री था बेसिकली, उतना कुछ खास अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर करते नहीं थे वो लोग। The Neolithic people in Kashmir used not only polished tool of stone but also numerous tools and weapon made up of bones। मतलब bones के भी बहुत सारे tools जो थे वो लोग यूज़ किया करते थे। In India, चिरन जो कि away from 40 kilometer west of Patna of the northern side of the Gangas made an antler horn of deer antlers। मतलब अब उसको horn of deer मतलब भेड़िया के सींग, मतलब सॉरी डियर के सींग से भी वो लोग टूल बनाया करते थे। These implements have been found at the late Neolithic settlement in an area with about 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। जो नॉर्मल एरिया था वहाँ पे, मतलब वेस्टर्न वाला पार्ट में, इससे 15 सेंटीमीटर रेनफॉल था और यहाँ पे 100 हो रहा था, तब तुम समझ सकते हो कि कितना ही रेनफॉल हो रहा होगा। ठीक है। और यहाँ पे 4 रिवर जंक्शन भी थी। कौन कौन सी? गंगा, सोन, गंडक, घाघरा एंड इज मार्क ऑफ प्योरिटी ऑफ स्टोन टूल। द पीपल ऑफ बुर्जाहोम यूज कोर्स ग्रे पॉटरी। It is interesting that a Burzahom domesticated dogs were buried with their master in their graves। मतलब जो डोमेस्टिकेटेड डॉग्स थे, जब इंसान मर जाता है तो उसके जो डोमेस्टिकेटेड डॉग थे और जो इंसान था, दोनों को एक साथ बरीड किया जाता था। दिस प्रैक्टिस डजंट हैव एविडेंट इन एनी अदर न्यूलिथिक कल्चर। मतलब और बाकी सारे एरिया में ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिला, लेकिन बुर्जाहोम में ये मिला है। और बोन्स भी है, उसको रिकवर्ड किया गया फ्रॉम चिरन, cannot be dated earlier than and possibly belong to a late Neolithic phase। ठीक है। We may place Baluchistan, Kashmir Valley and Neolithic settlement in northwestern group। Okay। Not another area from which Neolithic tool have been recovered. It is situated in the hill of Assam। Neolithic tool have been also been found in Garo Hills in Meghalaya and northeastern frontiers of India।
The second group may include the settlement in the Vindhyas and Kaimur hill. Second group कौन था सा, नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट वाले, राइट, ये वाले पोर्शन में विंध्यास एंड कैमूर हिल भी पढ़ सकते हैं. फाइंड अ नंबर ऑफ न्यूलिथिक सेटलमेंट इन अ नॉर्थ वेस्टर्न स्पर्स ऑफ विंध्यास. विंध्यास में इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में. The Neolithic sites such as Kolidwa and Mahagara in Allahabad district are known for the cultivation of rice. मतलब ये जो थे cultivation of rice भी क्या करते थे, ठीक है. For 15 millennium BC, Senur in Rohtas district in Kaimur Hill area is the most important site. Also notable is the site of Taradi close in Bodh Gaya temple. Okay, बोध गया क्या है एंड बुद्धिज़्म को तो हम लोग पढ़ेंगे या फर्दर वाले चैप्टर्स में. The river in a site of Chiran can be included in northeastern group. This site form eternity by itself because no stone is easily available in the riverine tract. मतलब ये जो एरिया में यहाँ पे सारे हैं, यहाँ पे रिवर वाले एरिया में बेसिकली उतना कुछ खास हमको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्टोन नहीं मिलेगा जितना कि साउथ इंडिया के में मिलेगा. इसीलिए जो इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ न्यूलिथिक पीपल जो है वो साउथ इंडिया के हैं बिकॉज ऑफ ईजी एबिलिटी ऑफ द स्टोन from the plateaus near the river banks of Godavari river. Okay, besides sheep and goats, a large number of cattle. Besides sheep and goat, they use a stone queens for grinding corns, which shows that they were acquainted with the art of producing cereal. मतलब art of producing cereal इन लोग को बहुत अच्छे से पता था. साउथ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूलिथिक सेटलमेंट में, जिसका मैंने रीज़न आपको बता ही दिया है क्यों. ओके, इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि इट इंक्लूडेड मास्की, ब्रह्मगिरी, हलूर, कोडेला, संगम, पैकल, ताकुलडर इन कर्नाटका, पायमली इन तमिलनाडु, उतनूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट इन आंध्र प्रदेश. ओके, और यहाँ पे एक बात डिस्कशन हुई है बिकॉज ऑफ पिकेलाल कैटल हर्डल्स. ओके, जो लोग कल्टिवेट मतलब जो लोग डोमेस्टिकेट करते थे कैटल को, शिप को, गोट को एक्सेट्रा, एंड सेटअप सीजनल कैंप सराउंडेड बाय काउपिन्स. मतलब सीजनल कैंप क्योंकि जो रेनफॉल था इस एरिया में हुआ करता था एडिक्वेट अमाउंट में, तो एक सीजनल कैंप्स भी वो लोग किया करते थे. फार्मिंग एंड सेरल्स, लेट अस गो इन दिस टॉपिक. सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन. मैंने थोड़ी देर का ब्रेक ले लिया क्योंकि मैं तब से बोले जा रही थी. ओके, न्यूलिथिक सेटलर्स जो थे वो अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटीज थे. स्टोन वेइंग 1.5 किलोग्राम वेर फिक्स्ड. ओके, मतलब अच्छी खासी यूज ऑफ माइक्रोटिक ब्लेड का भी वो लोग खासा यूज़ किया करते थे. सर्कुलर रेक्टेंगुलर हाउस पाई गई है जिसके अंदर मड एंड रीड है. Primitive people living in circular house owned property in common. In any case, these Neolithic people lead a settled life and produce rahi and horse gram, kullati, and even rice. Okay, Neolithic people in Mehrgarh were more advanced. ये लोग produce करते थे wheat, barley, and lived in mud brick houses. Okay. During Neolithic phase, several settlements become acquainted with the cultivation of cereal and domestication of animal. So they needed pot in which they could store their food grains and also pot for cooking, eating and drinking. This means कि इनको जो थे pot सिर्फ ना ओनली फूड ग्रेन्स के लिए बट ऑल्सो उसमें वो लोग खाना खा पाए और ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी वो लोग यूज़ किया करते थे. Pottery therefore first appeared in this phase. First appeared हुई handmade pottery in the early stages. Later, the Neolithic people used foot wheels to make pot. Okay, it seems that the potter's wheel came to Baluchistan from Western Asia, and from there it spread to the subcontinent. Subcontinent means India. Okay, the Neolithic pottery included black furnished ware, grey ware, and matte impressed ware. Ware सारे pottery के names होते हैं. Okay. Also been found in Orissa and Chota Nagpur hill areas, but traces of Neolithic settlement generally जो है एक few part of MP मध्य प्रदेश में and upper Deccan में पाए गए हैं बेसिकली. ठीक है, मतलब इस वाले रीजन में बहुत कम ही पाई गई हैं. ठीक है, प्रोग्रेस एंड लिमिटेशन क्या क्या था. देखो, ये जो था ना बहुत सारी टेक्नोलॉजीज तो थी लेकिन ये जो आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ये सब जो था ना
इंडस बिगिन अराउंड 7 मिलियन, ये हमको पता है. सम इम्पोर्टेंट क्रॉप इंक्लूडेड वीट एंड बार्ले एंड विलेजेस वर एस्टैब्लिश्ड. ये इसका प्रोग्रेस है, ठीक है. डिस्टिंग्विश इन न्यूलिथिक पीपल वाज देयर यूज ऑफ स्टोन किल्स टू एंड एज एंड पॉइंटेड टूल्स. ओके, these cells mostly served as styling tools such as hoods and plugshare. अब देखो, meant for digging के लिए काम होता था. showing seeds के all these mean